your name, Rovina ma'am joins in. So let's go straight away to her because she has already been our real hero. So let me just spotlight her and let her take over today because she is already like she has been regular with us. Okay, so spotlight video is Mita ji on the spotlight, friends. Okay, awesome. Yes, so Mita ma'am, go ahead. It's all your day now. Wow, what a lovely day. Thank you, Deva. Yes, today we are going to speak about the survival stories because we've heard so much about um, different stories. Today we are going to talk about how to come out from situations, and I've got many cases, but few of them which I would love to share with you so that we need to learn from these cases that as parents or as friends or as colleagues, what we need to do, what we don't need to do. Okay, so we all have human and we all have social humans. I mean, our social humans. So what happens is when you keep on experiencing events and situations, you're going to feel anxietyful, you're going to feel depressed, you may feel that you don't need any therapy. And we often go and, go to people for short feelings, good therapies. For example, people going for astrology, very good. I'm not denying it, it's good. People going for angel therapy, fantastic, very good. People going for meditation, very good. No issues. But I'm going to ask you, if we have a cup full of dirt and we try and put sugar water in it, what are we going to get? It's going to take ages for you to really be able to enjoy that sugar water or the, sharbat, whatever you call it. So first we need to empty the cup of whatever negativity we have. That is very important. So all these other therapies would be helpful. But they will be helpful only for short term. And you will get more dependent on it because you enjoyed it for little time. And counselors and psychologists, psychotherapists, they will apply research based therapies. They have been supervised. Hi, Alina. They've been supervised also by very big, they have been supervised by very good institutes and they have been trained. And over the years, they experience. So when they give this kind of a therapy, it really benefits. So together, we are going to be for counseling. Yes, we are going to remove the shame, we are going to remove the stigmas, and we will go on for the counseling. Counselors are very non-judgmental. They do not judge you for whatever you have done. We all are human beings, no? And we do make mistakes. So have to forgive ourselves and others. We have to remove the shame and the guilt which is hidden. And you know what? There are lots of cases. So I will discuss one case right now. Yes, Diva? Okay. I'm going to tell you the case of one girl. Usually, these youngsters have a lot of, they do not have a lot of emotional support from their family, so they get hooked on to another colleague of their own age. Like nowadays we've heard that boyfriend girlfriend chalta hai, but so often there are some people who are not very good, they do not have that intentions, and maybe they have some borderline personality disorders. But these girls who have been subjected to violence in their childhood do not let go of this boyfriend even if he is physically abusing her, and therefore they keep on tolerating this. And then there was this girl who came to me who was a very suicidal, she had suicidal thoughts. See, when you have suicidal thoughts, when you have anxiety, it generally gradually leads to depression and then suicidal thoughts, and then maybe a person could even attempt. So be careful, these people will always share it with friends.
So we are going to be friendly, we are going to listen, but we can't advise as friends. We have to take them to another person who is not emotionally connected to them, who can think more logically, rationally, and apply these research based therapies and help this person. So, any questions, please start putting it on the chat, yeah? Yes, everybody, if you have any questions for Meeta ma'am, put it and I'll ask it on your behalf so that we don't delay. I mean, we have already started late. So I will ask all the question on your behalf. Anything that you feel, you know what, this is an amazing medium. You can just speak your heart out. And then, I mean, Meeta ma'am, I have a question. Can Okay, you know, lots of people, when they lose their parents, either papa or mother, and they either get some sickness or they go through a bout of depression which affects their entire life. I mean, I have lost my mother, and I know how difficult it was for me to stay positive. So, do you think, and it relates to psychosomatic diseases as well, Yes, by yes. what I have read. Yes, beta, So, yes. how do you help Yes, beta. people cope There's a with that? How lot do of psycho. Yes, thank you. Very nice question, Deva. Thank you so much. Yes, death is something which is very traumatic for you, na? Losing a some person whom you love a lot, and without their time, it is not a timely death, it's a sudden death. See, once a person grows old and is very fragile, then you are accepting it that okay, sooner or later I may not have to spend time. But when suddenly something traumatic takes place, it does hamper us. It does. So, and the first thing what happens is you get scared. You get scared of losing all your near ones. Okay, Diva? And because of that, the first thing that happens in a psychosomatic is the tightening of your intestines. See, all this is psychosomatic. First, intestines will get tightened because of the fear. Heart will also get affected because you loved someone and you lost someone, right? And so these two things are the first thing, and the second most important is the thoughts, continuous negative thoughts. ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो no, I want one, I want, and वो pattern है ना बनता रहता है. Some of these patterns, Diva, have been formed as a small child. Some of the patterns could have been formed even when a person is in the mom's womb. I will love to share another case because of this topic. I was dealing with a very good surgeon who was from Delhi, again, your area. He was a plastic surgeon, a skin grafting surgeon, and he had this problem of relationships. With his wife, he used to have an avoidant relationship. He wouldn't be open, you know. If she comes too close emotionally, he will run away. So why even this happened? So we went back to his childhood and we did a lot of, you know, we call it kind of a clinical trance. We take this person to find out in case if there was anything that has happened in his childhood. And he just got glimpses of a fetus, a small baby in the womb. Now, he's not a gynac, but still he started getting these visuals. And then on asking, he realized that he remembered a very instructive memory. A memory so instructive that when he was in his mom's womb, his mom was so scared when she was pregnant that it literally kind of hit him like a trauma. And then when we healed that part, it one request, can you say in Hindi also, because there are many people who ठीक है to, I'm so ठीक है sorry I stopped you in नो नो प्रॉब्लम. तो मैंने ऐसा कहा कि कई बार अपने जब हम या हमारे बच्चे जब गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तभी भी माँ पे जो उतरती है ना, जो भी प्रॉब्लम्स या ट्रॉमा, वो भी अपने बेटे बच्चे पे जाता है. तो वैसे ही एक बहुत बड़े सर्जन थे दिल्ली में, जिनको हमने इसमें से बाहर निकाला. वो अपनी वाइफ के साथ टच में ही नहीं रह पा रहे थे, वो इमोशनली क्लोज नहीं हो पा रहे थे. हम्म. तो उनको पता चला कि वो अपनी मम्मी के कोख में जब थे ना, उनको ये याद शक्ति जब हम ट्रांस में लेके जाते हैं तब उनको याद आता है. तो उनको ये याद आया कि मैं जब माँ के पेट में था ना, मुझे बहुत डर लगा था. फिर हम लोग ने उनको समझाया, समझाना और उनके हील किया.
एज काउंसलर्स वी लिटरली उस चीज को हम उनकी सोच, उनके हर चीज में जो बदल के उनको जो पेश करते हैं, एंड देन हिज थॉट, उनके विचार बदल जाते हैं, उनको अपने अंदर अंदर का जो भी, जैसे दिव्या ने पूछा था कि अंदर के शरीर का जो भाग होता है जो धक 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 होने लगता है, वो कम धक धक होने लगा। तो हम लोग सिर्फ दिमाग से ही काम नहीं करते, हम सटल शरीर, सूक्ष्म शरीर से भी काम करते हैं काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, आई मीन प्रॉपर। कुछ लोग है ना सिर्फ दो चार अच्छी अच्छी सर्टिफिकेट कोर्स करके काउंसलर्स कहते हैं, प्लीज उनके पास दुखी मत होइए, क्योंकि पहले देखिए कि इन लोगों का पढ़ाई कितनी हुई, इनका एक्सपीरियंस कितना है, इनको सुपरविजन हुआ है कि नहीं, इन्होंने ट्रेनिंग्स की है कि नहीं, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो आपको निराश नहीं होगी। Does it happen कि ना sorry if you wanted to complete something, Meeta ma'am? जस्ट एक चीज हाँ कि बोलिए। कभी कभी हम लोग अच्छा लगाने के लिए, कभी हम लोग मंदिर में चले जाते हैं तो अच्छा लगता है, कभी हम प्रार्थना कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम वो कप खाली नहीं करेंगे तो वो अच्छा भी रहता नहीं है, वो छलक के नीचे गिर जाता है। तो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगती है दिव्या, तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको भूख लगी है तो एक बॉटल दूध की दे देते हैं तो उनको संतोष होता है। लेकिन और जब भी उनको पता चलता है कि अब मुझे भूख लगेगी तो मुझे रोना नहीं है, मैं बॉटल ले लूंगा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हेल्प हो गई। लेकिन उसी बच्चे को अगर हमने पैसिफायर, जैसे बुचकी जो कहते हैं ना, वो दे दिया, तो ना उसकी भूख मिटेगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए खामोश तो हो जाएगा, लेकिन इज दैट एथिकल? नो। इज दैट हेल्पिंग? नो। मतलब वो मदद रूप नहीं करेगा। तो प्लीज विजिट अ प्रॉपर काउंसलर। और कई लोग है ना दिव्या, एक चीज मैं बताती हूँ, कई लोग है ना काउंसलर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं अरे आपकी फीस कितनी है। मैं कहती हूँ प्लीज फीस के ऊपर मत ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि पैसा कितना है, ये सोचिए, और ये पैसा है ना, हम जैसे काउंसलर्स आपको प्रेम करने के लिए या आपके ऊपर आपका ध्यान रखने के लिए नहीं रहते हैं, वो तो आपको फ्री में है। ये हम लोग हमारा घर चलाने के लिए भी लेते हैं, हमारा भी घर चलना चाहिए, तो हम आपका ध्यान रखते हैं, आप हमारा ध्यान रखते हैं इस चीज को। और ये जो फीस भरते हैं ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलिए, जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ आपको आपकी इस इशू पे नहीं सिखाते हैं, आपको आपकी जिंदगी में कई चीजें, चैलेंजेस आते रहेंगे, तो आपको हर चैलेंज में आपको हर तरह से सिखा देंगे कि कैसे उसको निपटना है, कैसे उसको कोप करना है। तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट फीस। ओके, थैंक यू दिव्या, प्लीज गो ऑन। Okay, there's one little question that I have, and then there are questions that Jayaji and Deepika has put in the chat box. So my little question is: many cases it has been seen that if you lose one loved one, you become so depressed, and then one after another negative thing starts happening in your life because you start attracting. So is it important that whenever something of this magnitude happens in your life, that you bounce back, because otherwise you will be inviting more negative things in your life? यस, 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 वेरी ट्रू। दिवा, इसके ऊपर तो मैं खुद ही कहूंगी कि हमारे घर में एक वेरी क्लोज फैमिली मेंबर एक्सपायर्ड, उसके बाद घड़ी भी बंद हो जाती है, उसके बाद प्लांट्स को भी अच्छे फूल नहीं आ रहे। आपके घर में जितनी मछलियां होती है ना, वी हैड अ फिश टैंक, वो भी एक 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 करके जा रही है, हर चीज को अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि भी सूक्ष्म एनर्जी, जो शक्ति होती है ना अपने अंदर, अगर वो दुखी होती है तो हर जगह वो वाइब्रेशन नेगेटिव भेजती है। तो थोड़ी देर के लिए तो होता है, आपको चुप रहना है, आपको शांत रहना है, उसको भी आपको फेस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना दिव्या, कितनी भी ट्रबल होती है लेकिन हंसते रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, उनको लगता है बस बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये इतना भी पॉजिटिव भी नहीं होता है, वो तो बाद में आता है, पहले अपना कप खाली करो। कप खाली नहीं करोगे ना तो इट इज आर्टिफिशियल। True, true, true. Okay, Jaya ji has a question. If हाँ जी। has committed suicide and nobody knows the cause,
how the loved ones deal with the trauma. You know, if you know the reason कि okay, the not depression था, पढ़ाई का कुछ भी, then you still okay, you understand कि that was happened. But if you don't know what went in, how does the loved one deal with that kind of trauma? सुसाइड की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जया जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये है ना, दिमाग का एक्सीडेंट हो जाता है टाइप्स का होता है। इसके लिए हम सबको घर में अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से बातें बहुत करनी चाहिए, बहुत ही करनी चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि मुझे है ना, आई डोंट फील सेल्फ वर्थ, मैं तो है ना बेकार हो गई, मेरे को तो खुद पे प्यार ही नहीं है, मुझे कहीं भागना है, मुझे भाग जाना है, कहीं पर भी चले जाना है, मुझे वापस आना ही नहीं है, ये सब जो शेयरिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ ये जब होती है ना, तो इसको एक रेड सिग्नल के हिसाब से देख लो। बिकॉज ये इस बंदे को या इसको अपने कोई भी इश्यूज है, टेम्पररी इश्यूज है, ये परमानेंट इश्यूज नहीं है, लेकिन उसके सोल्यूशंस के लिए वो कुछ परमानेंट सोल्यूशंस ढूंढ रहे कि मैं भाग जाऊं, कि मैं तो बेकार ही हूं। दिस इज नॉट ट्रू, दीज आर ऑल assumptions। लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स आर सो बिजी, तो वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, फ्रेंड्स को अगर हेल्प करना भी है या पेरेंट्स को भी हेल्प करना है, तो भी दे डोंट नो हाउ टू, क्योंकि खुद पेरेंट्स को भी कई बार प्रॉब्लम्स होती है। वेरी गुड क्वेश्चन। शुड आई शेयर अ केस विद दिस और? Please, ओके, please go ahead. ओके, Please. तो आई विल शेयर अ केस ऑफ वन बॉय एंड हिज नेम इज प्रभु। प्रभु इज जस्ट, प्रभु मतलब गॉड। ओके, so I've just given all the different names. So this boy was in school where he was very handsome looking, tall, dashing, and got very good marks in school and college. लेकिन उसको suicidal thoughts थे। तो मैंने बगल में पूछा किया, asked him, उसकी हिस्ट्री ये थी, एक तरफ he had ideations of gay, जिसके साथ वो फ्लैट शेयर करता था, उसके प्यार में पड़ गया। वो भी एक बॉय ही था, बॉय विथ बॉय, और अपनी सोसाइटी में ये तो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो देयर इज शेम, देयर इज गिल्ट। फिर उसने क्या कहा, उसने इस बॉय के सामने जाके बताया कि आई आई रियली लव यू एंड यू नो आई वुड लव टू बी टुगेदर विथ यू। और उस बंदे ने रिएक्ट कर दिया, क्या पागल की तरह बात कर रहा है, पागल है क्या, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एंड ही चेंज, वो तो अपना फ्लैट भी छोड़ के चला गया, दूसरा फ्लैट लेना पड़ा। मतलब ही उसने क्या घुमाया, अपना फ्रेंड भी घुमाया, अपना फ्लैटमेट भी घुमाया, और जिसको प्यार करता था वो भी घुमाया। मतलब कितनी सारी चीजें एक साथ सडनली हो गई, और उसको खुद का फ्लैट भी ढूंढना पड़ रहा था। तो सो मच टेंशन टुगेदर, तो एंजाइटी हो गई, शर्म आई क्योंकि उसने ना बोल दिया, दुखी हो गए क्योंकि उसने मना कर दिया। सो कैन यू सी द ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस कमिंग टू हिम। ही वाज वेरी सुसाइडल, ही वाज हाईली सुसाइडल। पढ़ाई में कम मार्क्स आने लगे, ध्यान नहीं देने लगे। तो ये ना, ये सब चीजें होती है, जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या सो नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे सुबह उठ के हम लोग नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। ये सब कीनों को पे ऊपर ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। एंड देन हाउ वी डेल्ट विथ इट, एंड वी सपोर्टेड हिम, वी सेड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, अगर वो नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, गिव हिम द पावर ऑफ चॉइस, एंड वी मूव्ड ऑन। आप मानोगे नहीं दिव्या, he passed off with very good marks and he did very well for himself। बहुत ही अच्छे से उसने पास कर दी, एग्जाम्स पास कर दी, एवल आ गए। एंड गेस व्हाट, जिस बंदे ने उसको नकारत कर दी ना, वो बंदा आ गया कि नहीं, आई ऑल्सो लव यू। सब्र भी करना है, लेकिन किसी को ऐसे ऐसे इंसान को बताना है जो आपको नीचा ना करे, जो आपको समझे, जो आपको समझना चाहे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं।
So there Yeah. are more questions. I'll just start asking one after another Mm. because I don't want to fall short of time. I want every questions to be answered. We have such an expert with us. Okay, so Deepika says ki that's very also painful. You know, yeah, like as you mentioned, ki untimely death makes us sad. But even if the parents are old age, you know, at Of course. there na. So Of course. how do one deal with that? Because it's important to deal with it. क्योंकि मुझे यही लगता है माँ के बाद ना अगर मैं चली जाती डिप्रेशन में तो अपने लाइफ में मैंने और दो इनवाइट कर लिए होते. आई नो, आई नो. Work on. इसके लिए है ना, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी जाती हूँ. आई एम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो. क्या Right. होता है कि सब जो आते हैं सबको जाना ही है, सबको जाना है, लेकिन हम जीवन कैसे जिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या हम प्यार से रहते हैं? क्या हम जाने के टाइम पे उनको बहुत अच्छे से सहलाते हैं या उनको और भयभीत कर देते हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट. जाने वाला है. क्या हम उनको अच्छी यादों में जुड़ते हैं? क्या हम उनको प्यार से याद करते हैं या हम दुखी होके रो रो के प्यार याद करते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जीज उनको भी लगती है. अगर हम दुखी होके उनको याद करेंगे तो वो भी दुखी होंगे. आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि वो भी सुखी रहे और हमारे साथ ही रहे, क्योंकि सूक्ष्म एनर्जी हमारे साथ रहती ही है. जैसे सूरज की किरण, जैसे चंदा की किरण, ये सब हमारे साथ ही रहते हैं. एंड हम कई बार उनको नहीं मिल पाते हैं या हम उनको गले नहीं लास्ट लगा में जैसे पाते. जैसे मम्मी को मैं बाय नहीं कर पाई थी, हाँ. जा पाई थी और मुझे बहुत फील होता है इस बात का. सो दीपिका आल्सो राइट की couldn't see her during this time. I also lost my mother at 59, you know. So what do you do with that, and that वो haunting वाली feeling कि देख भी नहीं पाए जाते जाते. एक बात बताऊं, हम्म. तो आप सब ये एक्सपेरिमेंट कीजिए. करना है, ठीक है. हाँ बिल्कुल. आप है कौन? आप कौन है? एनर्जी. नहीं, यू विल से दिव्या दिव्या. एंड योर फुल नेम. तो मैं ये लिख देती हूँ. Yes, Divya, you answered me correct, but we are doing an experiment. So you will say my name is Divya and your full name, whatever. And I will say Meeta Shah. So I will write my name, Meeta Shah. Then you will say these are letters. आप ये मीता शाह हो, लेटर्स हो क्या? मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं है ना तुषित शाह की बीवी हूँ. ठीक है, ये मैं हूं, तो फिर तुषित तो आज है नहीं, तो आप कौन है? क्वेश्चन. अच्छा, ऐसा है ना कि मैं मीता शाह हूँ, मैं मम्मी पापा की बेटी हूँ, मैं यहाँ बड़ी हुई थी, मैं ये स्कूल में गई थी, फिर ये कॉलेज में गई थी, फिर ये करके अभी मैं यहाँ पर हूँ. अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी कहानी. ये तो आपने अपनी एक्सपीरियंसेस बता दी हैं, पर आप हो कौन? ये तो आपने कहानी बताई, एक्सपीरियंस बताया. आप कौन हो? तो आप बोलेंगे ठीक है. मैंने पूछा चलो एक स्टेप पीछे लेके आप आईने में देखो, तो आप बोलोगे ठीक है, मेरी हाइट इतनी है, मेरी बॉडी इतनी है, मेरा वजन इतना है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना अंदर, वो मैं हूं. अरे लेकिन 10 साल के थे तब आप अलग थे, 5 साल के थे तो आप अलग दिखते थे. आप हो कौन? लेकिन हाँ, एक चीज कंटिन्यूएशन थी शीशे में, कि वो आप ही थे जो 10 साल के भी थे, वो आप ही थे जो 5 साल के भी थे, वो आप ही है जो, और वो आप ही है जो बड़े होंगे, आगे भी जाएंगे. चेंज कंप्लीटली होते ही रहते हैं आपकी जिंदगी में. तो आप एक ऑब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट कौन है? यस, वेरी नाइस सुनीता जी, सोल. तो ये कहाँ रहता है? ये आपके शरीर के इर्द गिर्द, पीछे पीछे रहता है. ये पीछे रहता है. ये सिर्फ विटनेस करता है. जो आप सुनते हैं, मतलब मैं जो सुनती हूं वो सुनवाता है. मतलब आई एम व्हाट आई कैन हियर. हाउ डू आई पुट इट इन हिंदी? मैं ये हूं जो मैं सुनता हूं, मैं ये हूं जो मैं दिखता हूं.
देखता हूँ, बट आई एम नॉट दिस, हु एम आई? तो जैसे बुद्ध में कहा कि सोल या आत्मा, हिंदू धर्म में आत्मा कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में सोल कहते हैं, है ना? ये सब रिलीजन्स में है। तो ये कौन है? ये तो ऑलवेज रहती है, कहीं नहीं जाती है। तो हम तो इल्यूशन में है ना। एक चीज मतलब ये कहते हैं कि ये चले गए, कहाँ चले गए? ये तो सोल तो ऑलवेज इज देयर, कभी नहीं मरती है। मैं आप सबको कहती हूँ दिव्या, एक बहुत ही साइंटिफिक प्रूफ भी है। हाँ, हम सब ईश्वर के अंश है सुनीता जी, हम सब उसी उसी ऊर्जा के अंश हैं। तो मैं आपको एक चीज कहती हूँ, आपको मानना ना हो तो आप ये देखिए, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन, उसने बराबर बताया है कि आप में इतनी ईश्वर की शक्ति है कि आप अपनी सोच भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी भविष्य मतलब आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है, जब आपकी आत्मा में आपकी आत्मा को ये जन्म नसीब हुआ है। तो जितने अभी उस पे भी मैं एक कहानी बताती हूँ दिव्या आपको। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे हमारे द लव्ड वंस, हमारे माँ बाप, हस्बैंड, भाई बहन, उनको मरना नहीं चाहिए था, उनके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ। कई लोगों को ऐसा होता है कि मेरे मदर है ना बहुत तड़प तड़प के मर गए थे, तो ये बहुत गलत हुआ। कई लोगों को ऐसा होता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई एकदम से मर गए तो भी गलत है। मौत, जो इंसान को मौत होती है वो तो आगे निकल जाते हैं। हम लोग जो पीछे होते हैं हमको थोड़ा दुख तो होता है, मैं मना नहीं करूंगी, यस थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन एज इयर्स गो बाय वी गेट यूज टू इट। वन सेकेंड थिंग, एक स्टोरी बताती हूँ। ये है ना ब्रायन वेस की किताब में है, ओके। उसमें ही टॉक्स अबाउट वन डॉक्टर, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ की मम्मी मर गई थी, तो एलिजाबेथ को तुम्हारी जैसी बहुत गुस्सा आता था दिव्या। तो बोलती थी मेरी मम्मी को क्यों, वो ध्यान करती थी भगवान के सामने प्रार्थना करती, मेरी मम्मी को क्यों उठा दिया, मेरी मम्मी ने क्या किया था, गुस्सा कर रही थी। तो ऊपर उनके जब बहुत, वो डॉक्टर थी खुद ही बहुत ध्यान करती थी, तो उनको ऊपर से मतलब अंदर से आवाज आई जैसे भगवान उनसे बात कर रहे हैं, तुमको गुस्सा है ना? तो बोले हाँ बहुत गुस्सा है। तो बोले ठीक है, देखो अगर उनको हमने जैसे उनकी मम्मी को बहुत तड़प तड़प के मर गई थी, मतलब शी वॉज नॉट हेल्दी, तो बोले भगवान के देखो, तो बोलते मेरी मम्मी वो सो गुड, उन्होंने सब कुछ सिर्फ दिया था, प्यार ही दिया था, मोहब्बत ही दी थी, कभी किसी इंसान को गलत नहीं किया था, लेकिन ऐसी मौत उनको क्यों हुई? ओके। तो उसके अंदर बोले ठीक है बराबर है, उन्होंने सिर्फ प्यार दिया था, सिर्फ दिया था। अब आपका टाइम है कि आप उनको लौटाओ। अगर इस जन्म में नहीं, वो स्क्वायर होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। अगर इस जन्म में वो बैलेंस नहीं होगा तो वुड यू हैव प्रिफर्ड, क्या आपको चलता था अगर नेक्स्ट जन्म में उनको ऐसी अम, ऐसा जन्म हो जिसमें सब सिर्फ अरे रे 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 बेचारी आजा बच्चा करके, ऐसा जन्म अगर उनको मिलता तो क्या अच्छा लगता? नहीं। सो जो होता है उनके लिए अच्छा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको एक दिन आगे बढ़ना है। यस। आई मीन मैं अपनी 7 साल की बेटी से बात करती हूँ कि ना अबाउट डेथ, and from the time I have started, death is a very condemned topic. People don't like to talk about it, but from the time I have started talking with Elena about it, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको mentally prepare कर रही हूँ कि हम सबको एक दिन जाना है। एंड नानी गई, आई एम स्ट्रांग, मैं जाऊंगी, तुम स्ट्रांग रहना, सो वी ऑल हैव टू गो वन डे। आई डोंट नो हाउ गुड इट इज, बट आई डू दैट विद एलिना। Yeah, but more than yeah, once in a while you share that, it's Once okay. in a while, Yeah, once in yeah, a while, not not often, not often. no, no, not all. She will get scared of losing you from now only. So No, no, you know, stop. yeah, Pinaki, when yeah, time will come, I'll go. yeah, It's not yeah, everybody yeah, has yeah. to go.
Yeah, And make very it good, like very the good, way very birth good. is certain, death is also certain. Why हाँ to हाँ avoid हाँ, कई लोग नहीं, दिव्या बहुत अच्छी बात कही तुमने। कई लोग है ना, घर में अगर मौत होती है तो बच्चों को छुपा देते हैं, अंदर डाल देते थे। दे डोंट अलाउ देम टू इवन सी देयर ओन ग्रैंड पेरेंट्स। अपने दादा दादी का शव भी नहीं दिखाते हैं, बोले नहीं नहीं वो डर जाएंगे ना। उससे डरने जैसी बात ही नहीं है, ये हम लोग ही डराते हैं। true? तो ये नेचुरल चीज है। I think a child has to be prepared. Okay, there are so many questions and we have less time. So let me, I'll just put it. Vineet says, ki one of my friend's parents had big expectations from him on performing well in all fields. Due to excessive pressure, he took away his life. How do you suggest parents who have so much expectation just to show themselves better? सही बात है। प्लीज मैं सभी माँ बाप को बताती हूँ, प्लीज सभी माँ बाप को बताती हूँ कि किसी भी बच्चे पे इतना प्रेशर मत डालिए, उनको पहचानिए। कई बार आपसे नहीं संभलता है, आप प्लीज काउंसलर्स के पास जाइए। आजकल हर स्कूल में काउंसलर्स है ना, है कि नहीं है? हर स्कूल्स में है, हर कॉलेजेस में है। शर्म छोड़ दीजिए। शर्म से आप भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने बच्चे को भी नहीं बढ़ने देंगे। प्लीज जाइए। आपको पेट में दर्द होता है तो आप नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास? तो आपके दिल में दर्द होता है, आप क्यों नहीं जाते हो? कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, दिल में दर्द है तो आप काउंसलर के पास आइए। और आपको पता है काउंसलिंग के साथ साथ आपकी हर साइकोसोमैटिक इलनेसेस भी चली जाती है, क्योंकि हर चीज यहाँ से जुड़ी हुई है, हार्ट से जुड़ी हुई है। तो दिल खोल के जाइए, ट्रस्ट देम। Right. So thank you so much, Vineet, for the question. There's a question by my friend Monica. She says, how can you treat OCD? बेटा ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। Pardon? Okay, I'll just mute. अच्छा, Go ahead. OCD is it's a obsessive compulsion disorder। मतलब बार बार हाथ धोना, कुछ भी होता है हाथ धोते ही रहते, धोते इतना डर लग जाता है। तो इसके लिए काफी हम लोग मेहनत करते हैं। उसकी भी एक we do RECBT, we do CBT, we do trance healing, we do clinical hypnotic. There are a lot of ways to help OCD also, even ISP. So there are lots of ways we help. So you think that person should go for help, right? यस आई विल शेयर। मेरे यहाँ एक बच्चा था ओसीडी का, मैं आपको केस शेयर करूंगी इस बार। तो वो है ना बोलता था कि मैं आज अगर शर्ट्स कपड़े सुबह नहा धो के अगर नहाना है तो गीजर फटेगा तो नहीं ना, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से शुरुआत होती थी। कपड़े देखेगा तो मैं लाल पहनूंगा तो नहीं नहीं, लाल पहनूंगा ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैं आज ब्लू ही डाल के जाता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती थी। जैसे कॉलेज में आएगा तो मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये समोसा नहीं खाना है, मुझे बाहर का नहीं खाना है, मुझे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हम लोग ने उसको आहिस्ते 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 मैंने उनको काउंसलिंग कर करके इतना अच्छा बना दिया। वो नीचे गया, समोसे लेके आया। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अभी कोविड में नहीं, आई एम टॉकिंग मच बिफोर। और खा के मुझे बोला मैडम मैंने बिगर, मतलब का साफ तो साफ करते हैं लेकिन बिगर फीलिंग गिल्टी मैंने खा लिया और अब मेरी ओसीडी बहुत कम हो गई। क्रॉसिंग भी नहीं कर पा रहा था, रास्ते भी नहीं क्रॉस कर रहे थे। आई मीन या Okay, thank you so much, Meeta ma'am. There is a Tarun who wants to know, what are the ways to control anger? Being an IT professional, life is so fast that we don't get time for ourselves even. With the increase of stress in life and perhaps no life, we are bound to be cranky and short-tempered. How can we be patient and self-heal? Everything seems to be so negative and sometimes wonder what personality has changed to. So, some remedies, please. That's पक्का the question. पक्का। जिनको एंजाइटी होती है ना सुबह से शाम तक, एक बहुत ही अच्छी वीडियो है। आई विश आई कुड शेयर द स्क्रीन एंड शेयर एवरीवन, पर ठीक है। वो No, you. वीडियो वो वीडियो है, आप यूट्यूब में जाके देखिए, रैट रेस। बहुत ही जैसे चूहे भागते हैं भागते हैं भागते हैं, बस यहाँ से सुबह सुबह चढ़ो, ये नहा धो के टिफिन लगाओ, टिफिन लगा के काम पे जाओ, काम पे आओ, वापस आओ, काम पे भी धमाल, यहाँ भी धमाल। उफ,
आपको आराम भी चाहिए। आप ट्रेन में बैठे हो ना, तो भी 2 मिनट अपनी सांस पे ध्यान दो, सिर्फ सांस पे ध्यान दो। सांस पे ध्यान दोगे ना, तभी साथ साथ सिर्फ देखो, पेट पे ऊपर मैं जब सांस अंदर लेती हूँ तो पेट ऊपर होता है, जब सांस निकालती हूँ तो पेट नीचे होता है, या मैं सांस जब लेती हूँ या छोड़ती हूँ तो मुझे यहाँ अपर लिप पे महसूस होता है। सिर्फ ये दोनों चीज पे ध्यान दो। वेन नेवर पॉसिबल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी आप ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे टाइम नहीं है। आप अगर अपने लिए इतना भी टाइम नहीं निकालेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको ही एफर्ट्स लेना है। कई लोग सोचते हैं कि अगर काउंसलर के पास गए तो वो मैजिकल वॉन्ड निकाल के सब ठीक कर देगी ना। एफर्ट्स तो आप ही को लेना है। जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो स्टीयरिंग व्हील तो आप ही को पकड़ना है। आपके बगल में वो जैसे बैठते हैं ना, वैसे ही हम आपके बगल में बैठ के आपको लीड करेंगे। अब एक्सीलेटर दबाओ, अब ब्रेक दबाओ, अब गियर चेंज करो, हम ऐसे ही आपको बताएंगे, पर करना है आपको। सो ये सिर्फ इतना कीजिए, आंख लाइटली जेंटली बंद करके अपने नॉर्मल श्वास पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल सांस पे ध्यान दीजिए। कहाँ से मैं श्वास ले रहा हूँ, कहाँ से छोड़ रहा हूँ, मेरा पेट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते ये सांस लेने की जो रिदम है ना, वो स्लो हो जाएगी। जब ये स्लो हो जाएगी ना, यू आर मच इन कंट्रोल। और जिन लोगों को ना बोलना नहीं आता है, कोई बोलेगा ऑफिस में ये भी कर ले, ये भी कर ले, घर में भी, कोई ना जल्दी नहीं बोल पा रहा है, बहुत ही चुप रहते हैं। जैसे पैसिव अग्रेशन बोलते हैं, जिनको गुस्सा आता है ना, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब बोलना होता है खुद के लिए, तब हम नहीं बोलते हैं और सब्र कर लेते हैं, इतना टॉलरेट कर लेते हैं कि फिर फ्रस्ट्रेशन इंटॉलरेंस हो जाता है। जैसे एक कुकर को गैस पे रख दिया, गैस तो चालू ही है, आप अपने लिए खड़े नहीं हो रहे, जैसे अंदर प्रेशर हो रही है, तो आप प्रेशर को सीटी बजने नहीं दे रहे, सीटी को भी दबा दे रहे हो, तो क्या होगा? सबके केस में यही होता है। एंगर इज बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। So please read articles on assertiveness. Please visit counselors if possible. ऑनलाइन हो गई है। देखो कोविड में बहुत अच्छा हुआ कि सब काउंसलर्स ऑनलाइन है, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है, ज्यादातर ट्रैवलिंग में ही टाइम जाता है, ठीक है। आपको वेट भी नहीं करना पड़ता है ट्रैवलिंग करके बाहर वेटिंग रूम में। हाँ, विसल बजनी चाहिए। That's थैंक so यू। amazing. Okay, I have nobody has put any question, and Tarun says absolutely his case. So I'm sure Tarun, you benefited. Breathing went out, diary likhna, small things, and of course counselor ko visit karna. I mean, these are small things that can be done on your part to vent out and be feel better. Okay, there are two questions that I want to ask. I have a very close friend, okay, and she is a very committed mother, very committed wife, okay, and her life partner is also amazing, but घर में कोई चीज issue के वजह से, because of one issue, I mean the family life is not able to go normal ना। हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, बट कोई एक रीजन की वजह से आई मीन थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। दिव्या, बहुत अच्छा पूछ रहे हो। ये कपल में होता है, कपल्स में भी यार, हम लोग कई बार हमारी दिल की बात नहीं बताते हैं, वन। और कई बार स्पेशली वुमेन, स्त्रियों क्या करती हैं, अपने घर वालों को ऊपर बिठा देती है और खुद को नीचे बिठाती है। बच्चों को भी, बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूं लेकिन खुद के लिए नहीं। हस्बैंड के लिए सब कर रही हूं लेकिन खुद के लिए नहीं। तो ये जो सेल्फ वर्थ है ना, वो बाद में अंदर से खाया जाता है। दे आर लाइक टर्माइट्स, बिकॉज यू अज्यूम कि नहीं, मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में पूछना ही चाहिए था ना। ये अजम्पशंस होते हैं ना रिलेशन में, ऐसा होता है जैसे पेड़ के अंदर वो व्हाइट एंड्स हो जाती है ना, टर्माइट्स खा जाते हैं, पूरे रिलेशनशिप खा जाती है। बी ओपन टू से व्हाट यू वांट, बट हाउ यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पॉइंट फिंगर करके ब्लेम करते रहेंगे तो माय गॉड, नो 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 नो, आपके रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे।
Share your feelings. Please share your feelings. Show the mirror of, for example, if me and Divya had a fight, I'll say, Divya, that day you दी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के मेरे साथ इतना तुमने किया ना, मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत दुख लगा. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दिव्या मुझे सॉरी कहे या चेंज हो जाए, लेकिन मेरे अंदर का भार तो निकल गया. लेकिन हम लोग इतना सारा भार लेके चलते हैं. आप देखना, जब भी आप चलते हो ना रास्ते पे, लोग बाग इतना वजन लेके यहाँ पे चलते हैं ना, इतना क्रीजेस होते हैं, ऐसे 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 चलते रहते हैं. अगर 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 हस्बैंड समझता नहीं हो, यू नो, लाइफ पार्टनर, कई बार होता है ना कि व्हेन वी से थिंग्स, आई मीन इट यूज्ड टू हैपन विद बिटवीन माय पेरेंट्स, मम्मी बोलती रहेंगी पापा वैल्यू नहीं करते थे. तो अगर अगर इफ इट्स गोइंग ऑन अ डेफ एयर, still should the wife say her problems, talk about her needs? I mean, do you still suggest कि the thing has to be put, और लाइफ में और भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हों तो हस्बैंड कहीं ना कहीं हर चीज में घुसा हुआ है, obviously there's lots of pressure on everybody. So do you, in such a situation, how does the wife puts her point of view or her issues in front of her husband? देविया बहुत अच्छी बात कही. अभी मेरा एक केस है, बहुत अच्छे. हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल बिजनेस वाइज, बहुत पैसे वैसे सब कमा रहे हैं, बच्चा भी अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है, बाहर जा रहा है पढ़ाई करने. लेकिन हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम्स है. हस्बैंड इतना बिजी है काम में कि वो शायद ध्यान नहीं दे पा रहा है वाइफ में, बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे को भी कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं, और हस्बैंड को लगता है कि वाइफ अपना ध्यान नहीं दे पा रही है. मैंने दोनों चीजों में देखा है कि वाइफ जब अपने हस्बैंड को ऑलवेज ऊपर रखती है और खुद को नीचे रखती है, फिर आगे जाके ये डिस्टेंस बढ़ता रहता है, कम नहीं होगा. जब तक खुद वाइफ अपने लिए खड़ी नहीं रहेगी, अपने आप को प्रेम नहीं करेगी, बोलेगी आज मैं नहीं खाना बना रही हूं, क्यों, आज मुझे आराम करना है, जब तक खुद के लिए हम खुद खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं रहेगा. जैसे एक बार है ना, मेरे को एक फादर कह रहे थे, मैं स्पेशल स्कूल की भी प्रिंसिपल थी 5 साल, तो वहां पे वो बोल रहे थे, देखो ये है ना मम्मी का ही नहीं सुनता है, मेरा सब सुनता है. फादर टोल्ड मी, हाँ, वेरी प्राउडली. मैंने बोला सही बात है भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं. आप जैसे आते हैं ऑफिस से, आपके लिए पानी का ग्लास वो लेके आता है, मम्मी के लिए नहीं लाता है. बहुत सही बोला आपने. आप जब ऑफिस से आते हैं तो आपकी बीवी भी लाती है? बोले हाँ. जब आपकी बीवी मार्केट से थकी हुई इतना वजन लेके सब्जी वगैरह लेके आती है, आप कितनी बार उठ के अपनी वाइफ के लिए पानी लेके आए? तो बच्चा क्या देखता है, वो तो वही देखेगा ना जो हो रहा है. और अगर वो जाके पानी लाएंगे भी तो भी वाइफ के नहीं नहीं नहीं, आप क्यों ला रहे हो, आप रहने दो, मैं ही कर देती हूँ. तो so often we only put them over there. Why can't we say please मेरे लिए एक ग्लास का पानी लाइए ना? Why can't we say? What is, why do we? क्योंकि हमारे को पहले से ही कंडीशन किया जाता है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करेंगे. तो कई बार अच्छी बात है तुम दूसरों को हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, कभी कभी तुम्हें भी हेल्प चाहिए. खुद के लिए अगर आप नहीं खड़े रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. ओके, थैंक यू सो मच. आई मीन मम्मी पापा का इक्वेशन मुझे शायद आज समझ में आया कि कैसे मम्मी वुड हैव नेवर स्टूड फॉर हरसेल्फ एंड पापा एक्चुअली डिड नॉट. आई मीन, यू नो, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर योरसेल्फ, नोबडी स्टैंड्स फॉर यू. Love yourself, please love yourself. Love yourself. Yes. अच्छा, last one more question. I'm getting very selfish, मीदा मैम. No problem, please, please, please. मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो है नहीं लेकिन मुझे लगा कि मैं पूछ लूं. उसके इश्यूज बहुत है ना, तो वो अटेंड भी नहीं कर पाती है सेशन. ठीक है, वो उसकी ना सेकंड मैरिज है. ठीक है, एंड शी मैरिड दिस मैन एंड ही डज नॉट वैल्यू हर, does not value her relationship with her, and is not the, I mean, I always feel he is not the right person for her, but I mean, it's her personal decision to stay with that person or not stay with that person.
ठीक है, मुझे बहुत लगता है कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूं. दैट पर्सन अगेन, ही हैज लाइक लॉट्स ऑफ मेंटल ब्लॉक्स, जितना मुझे उसके बातों से समझ में आता है. एंड दिस गर्ल इज रियली ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. वो बहुत चाहती है अपना शादी को और अपना सब कुछ बचा के रखने के लिए. ठीक है, और हस्बैंड भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बचपन के इश्यूज हस्बैंड के ना बहुत सामने आ जाते हैं, और वो अच्छा रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होता है. द चाइल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड. बहुत सारे फाइट्स होते हैं, अनवांटेड चीजें होती हैं. तो कैसे, हाउ डज सच पीपल डील विद सच अ ट्रबल रिलेशनशिप, एंड वेर यू रियली आर वर्किंग हार्ड टू मेक इट वर्क लाइक एनीथिंग. बहुत अच्छा प्रश्न किया है दिव्या, लेकिन मैरिज में दो जन चाहिए, एक जन से नहीं चलता है. यहाँ पर आपकी स्टोरी में समझे हैं कि सिर्फ वाइफ इज ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू वर्क. अगर हस्बैंड ने भी थोड़ा देखो, मैरिज इज अ थिंग जहाँ पे दोनों को एनर्जी डालनी है. अगर एक ही बंदा डालता रहेगा तो इट इज एन अनहेल्दी रिलेशनशिप. अब अनहेल्दी रिलेशनशिप में कैसे रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट आंसर, क्योंकि दोनों को मोटिवेशन होना चाहिए कि हम दोनों ही इसमें कुछ करें. लेकिन हमारे समाज में जो लेडीज, जैसे मैंने कहा कि वो यही, देर इज अ कंडीशनिंग इवन विद द मेन कि लेडीज को घर पे काम ही करना है, बातचीत उनसे नहीं होती है, उनको तो सिर्फ रसोई संभालनी है. तो मैं हर लड़की को, हर औरत को आज ये कहूंगी, पढ़ो, लिखो, कुछ ना कुछ काम करो. डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनी वन. ट्राई टू बी ऑन योर ओन. ट्राई टू बी. अच्छे हस्बैंड्स यही होंगे जो अपनी बीवियों को खुद के पैर पे खड़े रहने को कहेंगे. अच्छे हस्बैंड्स यही रहेंगे जो अपनी बीवी को कहेंगे कि चलो तुम्हारी भी अस्तित्व तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं. जो हस्बैंड अपनी बीवी को कंट्रोल और डोमिनेट करते हैं, बाहर जाने नहीं देते हैं, उन लेडीज को भी मैं कहूंगी कि यू हैव द पावर ऑफ चॉइस. कि मैं बराबर आऊंगी, मैं बच्चों का भी ध्यान दूंगी, लेकिन मुझे जाने दीजिए. क्योंकि यही हस्बैंड, मैंने कई केसेस देखे हैं कि जब यही हस्बैंड, ही विल स्टार्ट गोइंग, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस, कई हस्बैंड्स फिर बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके साथ करते हैं? द स्मार्ट लुकिंग गर्ल हु इज इंडिपेंडेंट. खुद की वाइफ को डिपेंडेंट बना के बाहर जाते हैं. तो व्हाट डू यू वांट? Sorry, I'm not against any husbands. They are lovely. My husband was amazing. So, उन्होंने तो, मैं जब है ना, I was also like that only दिव्या. मेरी शादी के बाद अगर हम थम्स अप भी मंगाना या वेफर भी मंगाना, ब्रेड का पैकेट, हेलो भरत स्टोर्स, हाँ जरा ब्रेड मंगाना है. कौन से घर में? भाई तुषित शाह के घर पे. हाँ हाँ 201. माई हस्बैंड विल से, भाई तुषित शाह, ये घर तो मैंने तुम्हारे नाम पे लिया है, मीता शाह क्यों नहीं बोल रही हो तुम? अपना अस्तित्व बनाओ मीता. एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम. I think true relationship is one which empowers you, which actually helps you become better. So that's what true relationship is. I mean, I can't thank you enough. पता है आपने मेरे मन के, मेरे जो उलझन इतने दिनों के थे, जो भी मेरे पेरेंट्स को लेके, you have sorted it all. So Meeta ma'am, थैंक यू. about others, I have benefited so much. I was so engrossed in the sessions. I can't thank you enough. I can't really thank you enough for what you gave today. थैंक यू सो मच दिव्या. लास्ट वन लाइन, हमारी विचारों को जब हम रिजिड बना देते हैं तो हमको बहुत मुश्किलें होती हैं. रिजिड मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी इट इज, आई कैन बेयर इट. ये ध्यान रखना है. फ्रस्ट्रेशन, इनटॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सीखो, हर चीज को टॉलरेट करना सीखो. दैट इज द बिगेस्ट लेसन. लेट गो, लेट गो, पकड़ के मत रखो, लेट गो. हर किसी को फॉरगिव करो, खुद को पहले फॉरगिव करो, खुद को पहले प्यार करो, दूसरों को बाद में प्यार करो.
कहते हैं ना, जैसे कि फ्लाइट में कहते हैं ना कि अगर कुछ भी हुआ और ऑक्सीजन मास्क आया तो पेरेंट्स कहते हैं पहले आप लगाना, बच्चों को बाद में। क्यों? अगर आप ही नहीं रहोगे तो बच्चे को क्या फायदा? So first put it on yourself so that you can help your children, so that you can help your family. है ना? Thank you. You know what? Everybody is writing lovely things for you. Oh, so sweet. Shagun says beautiful guidance. So glad to attend. Thank you, Meeta ji. Rovina ma'am says fantastic session. Meeta says, Deepika says, Monica